بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس ایپیسوڈ نمبر 17۔ جن دونوں منگولوں کے مرکزی شہر مراغہ میں طرابلس سے آنے والے پادریوں نے ہلاکو کے بیٹے اور منگولوں کے حکمران ابقا خان کو مسلمانوں پر حملہ ور ہونے کی ترغیب دی تھی، ان دونوں ہلاکو خان کا چھوٹا بیٹا اور ابقا خان کا چھوٹا بھائی اپنے مرکزی شہر سے دور شمال میں برفستانوں کے اندر شکار کرنے میں مصروف تھا۔ اس شخص کا نام پہلے تیکودار اغلان تھا۔ یہ انتہائی شجاع، دانشور اور عاقل انسان تھا، لہٰذا نصرانی مبلغوں نے اسے اپنے حلقے میں لے لیا تھا۔ یہ پہلے عام منگولوں کی طرح نیلی جاویدانی آسمان کی عبادت کرنے والا تھا، لیکن عیسائی مبلغوں کے ہاتھوں بچپن ہی میں اس نے عیسائیت قبول کر لی اور عیسائیت مبلغوں نے اس کا نام نیکولس رکھا۔ لیکن یہ تیکودار اغلان جب بڑا ہوا تو مسلمانوں کے اتوار اور ان کے مذہب سے ایسا متاثر ہوا تھا کہ مسلمانوں کے دین کو پسند کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے مسلمانوں مبلغوں کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام نیکولس سے احمد رکھ لیا۔ اسی احمد ہی کی وجہ سے منگولوں میں بے شمار لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اپنے مسلمان مبلغوں کی وجہ سے احمد نے منگولوں کے اندر اسلام کی نشرت اور اشاعت کا کام جاری رکھا اور دن بدن بڑی تیزی سے منگول احمد کے کہنے پر اسلام قبول کرنے لگے تھے، اس لیے کہ احمد منگولوں میں بڑی ہر دل عزیز شخصیت رکھتا تھا۔ اپنے مرکزی شہر مراغہ سے احمد نے دور برفستانوں کے اندر خیموں کا ایک شہر آباد کر رکھا تھا اور شکار میں مصروف تھا۔ خیموں کے اس شہر میں اس کے ساتھ ایک پورا لشکر تھا جس میں زیادہ تر مسلمان ہی تھے، اور یہ گرتی برف میں برفانی جانوروں کا شکار کرنے میں لگا ہوا تھا کہ چند قاصد اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے مراغہ سے برفستانوں میں لگے ہوئے اس کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ احمد کو جب ان سواروں کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے شکار بند کر دیا۔ وہ اپنے خیمے میں آیا اور مراغہ سے آنے والے سواروں کو اس نے اپنے خیمے میں طلب کیا۔ وہ سوار تعداد میں 4 تھے۔ احمد کے ذاتی محافظ ان سواروں کو اس خیمے میں لے گئے۔ جب وہ چاروں اس کے سامنے پیش ہوئے تو احمد نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے پوچھنا شروع کیا، کیا تم چاروں مراغہ سے میرے لیے کوئی اہم خبر لے کر آئے ہو؟ کیا مراغہ میں میرے خلاف کوئی قوت حرکت میں آ چکی ہے یا آنے والی ہے، یا یہ کہ میرا بڑا بھائی ابقا خان مسلمانوں کے خلاف کوئی غلط یا بڑا قدم اٹھانے والا ہے، یا یہ کہ حالات میرے حق میں پلٹا کھا چکے ہیں؟ ابقا مر چکا ہے اور میں منگولوں کا حکمران بننے کے بعد سلطان ہونے کا اعلان کرنے والا ہوں۔ احمد کے خاموش ہو جانے پر ان چاروں میں سے ایک بول پڑا، خاقان مسلمان ہونے کے ناطے سے ہم آپ کے لیے مراغہ سے ایک بری خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم چاروں نے آپ ہی کی موجودگی میں مسلمان مبلغی ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا، لہٰذا کسی کو بتائے بغیر ہم مراغہ سے روانہ ہوئے تاکہ وہ بری خبر آپ کے کانوں تک پہنچائے۔ احمد چوکنا ہو گیا اور پریشان کن انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ تم کون سی بری خبر لے کر آئے ہو؟ کیا اسلام قبول کرنے کے جرم میں میرا بھائی ابقا مجھ پر گرفت کرنا چاہتا ہے؟ اور اس سوار پر پھر بول پڑا، نہیں خاقان، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل ابقا خان مسلمانوں پر حملہ ور ہونے کا ارادہ کر چکا ہے۔ خاقان طرابلس سے 2 پادری آئے تھے، انہیں نصرانیوں کے سرگردہ لوگوں نے ابقا کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ان پادریوں نے ابقا کو ترغیب دی ہے کہ وہ فی الفور مسلمانوں پر حملہ ور ہو جائے۔ خاقان، آپ خود بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا سلطان رکن الدین وفات پا چکا ہے، اس کی جگہ سیف الدین اب مسلمانوں کا سلطان ہے۔ ان دونوں پادریوں کا کہنا تھا کہ رکن الدین کے وفات کے بعد مسلمانوں کی طاقت کمزور اور ضعف کا شکار ہو گئی ہے، لہٰذا اگر ابقا خان اس وقت حملہ ور ہو جائے تو مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی قوت نہیں جو منگولوں کی راہ روکے، لہٰذا منگول مصر کے مرکزی شہر قاہرہ تک اپنے فتوحات کا دائرہ بڑی آسانی سے پھیلاتے چلے جائیں گے۔ پادریوں کے ذریعے طرابلس کے معزز نصرانیوں نے یہ بھی پیغام بھجوایا تھا کہ اگر ابقا خان مسلمانوں پر حملہ ور ہو تو طرابلس کے نصرانی پوری طاقت اور قوت سے مسلمانوں کے خلاف اس کا ساتھ دیں گے۔ ابقا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ مصر کی حکومت پر حملہ ور ہوگا، اس لیے ابقا خان نے 3 لاکھ کا ایک بہت بڑا اور جرار لشکر تیار کر لیا ہے۔ 3 لاکھ کے اس لشکر میں لگ بھگ 1 لاکھ سوار ہے اور باقی پیادے لشکر ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب ابقا خان لاکھ کے اس لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی راہ نہ روک سکے گی۔ اس قاصد کے اس انکشاف پر احمد کی گردن جھک گئی تھی، اس کے چہرے پر دکھ، غم اور پریشانی کے آثار تھے۔ تھوڑی دیر تک وہ گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر ان قاصدوں کی طرف دیکھا، ساتھ ہی اس کی دھیمی مگر غم میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، کاش اسلام قبول کرنے کے بعد منگولوں کے اندر میں اتنی طاقت اور قوت جمع کر لی ہوتی کہ آج میں اپنے بھائی ابقا کے سامنے ایک مسلمان کی حیثیت سے کھڑا ہوتا اور اس کی راہ روکتا اور اسے مصر پر حملہ ور ہونے کی کبھی اجازت نہ دیتا۔ کاش میرے پاس ایسا وسائل ہوتے کہ میں اپنے بھائی کو مسلمانوں کی ہلاکت اور خنزیری سے روک سکتا
लेकिन सुनो ऐ आने वाले कासिदों, मुसलमान के हिस्से से मेरा ईमान है कि जब कोई नहीं देखता तो खुदावंद हर चीज का देखने वाला है। वो मुसलमानों का मुहाफिज और नासिर है। मुझे उम्मीद है कि अक्का खान की 3 लाख लश्कर के मुकाबले में मेरे खुदावंद जो खालिक कायनात है और जो दिलों के भेद जानता है, जरूर मुसलमानों की मदद फरमाएगा। सुनो मेरे अजीजों, मेरा दिल कहता है कि सुल्तान सैफुद्दीन भी मंगोलों पर सियाह रंग की तकदीर की तरह हमलावर होगा। मेरे साथियों, अगर माजी में सुल्तान रुकनुद्दीन मंगोलों पर सुस्ती वीरानियों की तरह हमलावर होते हुए उनकी हालत सुलगते लम्हों की तरह कर चुका है, तो मेरा दिल कहता है कि चूंकि मौजूदा सुल्तान सैफुद्दीन और उसके दोनों साथियों तुर्निताई और हुसामुद्दीन ने भी सुल्तान रुकनुद्दीन ही की निगरानी और रहनुमाई में जंगी तजुर्बात हासिल किए हैं, लिहाजा वो तीनों भी शराबों के जजीरों की तरह उन पर हमलावर होंगे। मेरे साथियों, ऐसे में जबकि मेरा भाई अक्का खान मेरी मुस्लिम कौम के खिलाफ हरकत में आ रहा है, तो मेरा मुरागा शहर में होना लाजिमी है। सुनो मेरे रफीक को, मैं मंगोल जरूर हूँ, लेकिन मंगोल होने से पहले चूंकि मुसलमान हूँ, लिहाजा मैं मुस्लिम कौम ही का एक फर्द हूँ। इस बिना पर मंगोलों के मुकाबले में मेरी सारी हमदर्दियाँ अपनी मुस्लिम कौम के साथ है। अपना पड़ाव उठा लो अभी और इसी वक्त मैं अपने मरकजी शहर मुरागा की तरफ कूच करेंगे और जो हालात रोड में होने वाले उन पर कड़ी निगाह रखेंगे। सुनो मेरे साथियों, मेरा दिल कहता है कि अब वक्त आ गया है, मुझे खुद भी हरकत में आना होगा और अपने भाई अक्का से निपटना होगा। इसलिए कि अक्का खान बार बार नसरानी के कहने पर मुसलमानों पर हमलावर होकर मेरी मिल्लत मेरी कौम के नुकसान का बायस बन रहा है, लिहाजा मुझे भी अब कोई ऐसा कदम उठाना होगा जिसके बायस मुरागा के मंगोल सल्तनत एक मुसलमान सल्तनत में तब्दील होकर रह जाए। इसके साथ ही अहमद अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। उसके साथ ही बड़ी तेजी से पड़ाव की हर चीज को सिमेट कर अपने मरकजी शहर मुरागा की तरफ कूच कर गए थे। अमीर तुर्निताई ने दमिश्क में क़याम के दौरान अपने साथी हुसामुद्दीन को सुल्तान सैफुद्दीन के हुक्म के मुताबिक दमिश्क का वाली मुकर्रर कर दिया था और उसने भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ दमिश्क ही में क़याम कर लिया। एक रोज जबकि अमीर तुर्निताई अपने लश्कर के खाने की निगरानी कर रहा था कि हुसामुद्दीन कुछ लोगों के साथ तुर्निताई के पास आया और बड़ी इरादत मंदी में तुर्निताई को उसने मुखातिब किया। अमीर, मैं कुछ कासिद आपके पास लेकर आया हूँ। एक कासिद सीधे मेरे पास आए थे। ये पहले आपको तलाश कर रहे थे, चूंकि आप लश्कर में थे, ये आपको ना पाकर सीधे मेरे पास आए, लिहाजा मैं इन्हें आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। इन आने वाले कासिदों के पास बड़ी अहम खबरें हैं। हुसामुद्दीन की इस गुफ्तगू पर तुर्निताई चौकन्ना हुआ। बारी बारी उसने उन कासिदों की तरफ देखा। वो तादाद में 4 थे। इस मौके पर हुसामुद्दीन फिर बोल पड़ा, अमीर, ये जो 4 कासिद है, इनमें से 2 मंगोलों के मरकजी शहर मुरागा की तरफ से आए हैं और 2 काहिरा से आ रहे हैं। तो निताई ने पहले मंगोलों के मरकजी शहर मुरागा से आने वाले कासिदों की तरफ गौर से देखा, फिर पूछा, क्या तुम मंगोलों के शहर मुरागा से कोई अहम खबर लेकर आए हो? उन दोनों में से एक बोल पड़ा, अमीर, हम एक बुरी खबर लेकर आए हैं। सुल्तान रुकनुद्दीन की वफात के बाद नसरानियों और मंगोलों को कुछ गलत फहमियां हो गई है। नसरानियों ने अब अपनी ताकत और कुव्वत का सर चश्मा अपने शहर तराबलस को बना लिया है। तराबलस के सरगर्दा ईसाई पादरियों ने अपने 2 पादरी मंगोलों के मरकजी शहर मुरागा की तरफ भिजवाए और उन पादरियों के जरिए मंगोलों के हुक्मरान अक्का खान को यह पैगाम भिजवाया कि मुसलमान रुकनुद्दीन की वफात के बाद चूंकि कमजोर हो चुके हैं, लिहाजा अक्का खान फौरन मुसलमानों पर हमलावर होकर अपनी माजी की शिकस्त के दाग धोए और मुसलमानों को शिकस्त देकर अपने लिए फवायद हासिल करे। अक्का खान मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए तैयार हो गया है। जो लश्कर उसने हम पर हमलावर होने के लिए तैयार कर रखा है, उसकी तादाद 3 लाख के लगभग है। 3 लाख के इस लश्कर में तकरीबन 1 लाख सवार है और बाकी 2 लाख लश्कर पैदल है और इन 3 लाख का लश्कर बहुत जल्द मुराका से कूच करके मुसलमानों के इलाकों पर हमला करने के लिए जुनूब की तरफ पेशकदमी करेगा। अमीर तुर्निताई ने कुछ देर तक सोचा, फिर हुसामुद्दीन की तरफ देखा। हुसामुद्दीन, मंगोलों का लश्कर अगर 3 लाख से भी ज्यादा है तो हम पीठ नहीं दिखाएंगे। हुसामुद्दीन, मेरे भाई, हम आज या कल यहाँ से कूच करना होगा। अपने सारे लश्कर को लेकर हम मंगोलों की राह रोकेंगे और मुझे उम्मीद है कि हम उन्हें शिकस्त देने और पसपा करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरे खुदावंद से दुआ कि मंगोलों की इस तूफान के सामने हमारी मदद और इयानत फरमाए। जवाब में हुसामुद्दीन ने दुआई अंदाज में हाथ उठाते हुए आमीन कहा। इसके बाद तुर्निताई ने काहिरा की तरफ से आने वाले कासिदों को मुखातिब किया, तुम दोनों क्या सुल्तान की तरफ से आए हो? मेरे लिए कोई अहम पैगाम लेकर आए हो? इस पर उन दोनों में से एक बोल पड़ा, अमीर, आपका अंदाजा दुरुस्त है। सुल्तान की तरफ से हम आपके नाम अहम पैगाम लेकर आए हैं। बुराका की तरफ से आने वाले हमारे दोनों भाइयों ने आपको जो खबरें दी है वो खबर पहले ही काहिरा पहुंच चुकी है और ये खबर मंगोलों के हुक्मरान अक्का खान के भाई कुछ साथियों ने बड़ी राजदारी के साथ काहिरा पहुंचा दी थी। लिहाजा सुल्तान सैफुद्दीन वक्त ज़ाय के बगैर एक लश्कर के साथ काहिरा से निकल चुके हैं। वह हमें शहर का रुख कर रहे हैं ताकि मंगोलों की तूफान को रोका जा सके। आप और हुसामुद्दीन के नाम सुल्तान का पैगाम है कि आप भी अपने लश्कर के साथ हमीस की तरफ सुल्तान के लश्कर से जा मिले। काहिरा की तरफ से आने वाले कासिदों के इंकिशाफ पर तुर्निताई के चेहरे पर
खुशगवार सी मुस्कुराहट नमदार हुई। उसके बाद उसने दोबारा मंगोलों के मरकजी शहर मुरागा की तरफ से आने वाले कासिदों की तरफ देखा। तुम दोनों का क्या ख्याल है, क्या मंगोल अभी तक मुसलमान इलाकों पर हमलावर होने के लिए अपने मरकजी शहर मुरागा से कूच कर चुके होंगे? इस पर इस बार दूसरा कासिद बोल पड़ा। अमीर, आपका अंदाजा दुरुस्त है। मेरे ख्याल में मंगोल लश्कर अबका खान की सरकर्दगी में अपने मरकजी शहर मुरागा से निकलकर जुनूब की तरफ पेशकदमी करते हुए कई मील का सफर तय कर चुका होगा। इस पर तुर्निता ने फौरन बोल पड़ा, हुसामुद्दीन मेरे भाई, मैं अपने खीमे की तरफ जा रहा हूँ, तुम फौरन कूच की तैयारी करो। आज शाम तक हम दोनों अपने लश्कर को लेकर हमीश शहर की तरफ रवाना हो जाएंगे। इसके साथ ही तकरीबन भागने के अंदाज में तुर्निता अपने खीमे की तरफ चला गया। तुर्निता तकरीबन भागता हुआ जब अपने खीमे में दाखिल हुआ तो खीमे में हसीन और जमील रूदा इस हालत में देखते हुए परेशान हो गई थी। भाग कर वो आगे बड़े बड़े प्यार, बड़ी चाहत, बड़ी मिठास, बड़ी हमदर्दी में उसने तुर्निता के दोनों हाथ अपने गदास नरम मरमरी हाथों में लिए। फिर सुपुर्दगी के अंदाज में अपने जिस्म का कुछ बोझ उसने तुर्निता पर डालते हुए प्यार भरे आवाज में पूछा, आप इस कदर बदहवास और जल्दी में क्यों है? क्या कोई दुश्मन की तरफ से या काहिरा किस्म से नई खबर मौसूल हुई है? इस पर तुर्निता फौरन बोल पड़ा, रूदा मेरे अजीज, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है। मंगोल हम पर हमलावर होने के लिए 3 लाख के लश्कर के साथ अपने मरकजी शहर मुरागा से कूच कर चुके हैं। इस खबर के इत्तला सुल्तान सैफुद्दीन को काहिरा में पहुंच चुकी है और सुल्तान एक लश्कर के साथ काहिरा से निकलकर हमीश शहर की तरफ रवाना हो चुके हैं। मेरे और हुसामुद्दीन के लिए भी सुल्तान ने हुक्म भेजा कि हम भी अपने अपने लश्कर को लेकर हमीश की तरफ सुल्तान से जा मिले। लिहाजा शाम से पहले पहले लश्कर यहाँ से कूच करेगा। आओ अपने सामान को सिमट ले, इसलिए कि थोड़ी देर तक खीमे बांध लिए जाएंगे और लश्कर कूच की तैयारी करेगा। रुदा चूंकि अब उन चीजों की आदी हो चुकी थी, लिहाजा उसके चेहरे पर किसी तशवीश की आसर नमूदार नहीं हुई, बल्कि वो तुर्निता के साथ मिलकर अपने खीमे की सारी चीजें सिमटने लगी थी। थोड़ी देर बाद तुर्निता और हुसामुद्दीन दोनों अपने अपने लश्कर के साथ दमिश्क से हमीस की तरफ कूच कर लिया था। तुर्निता और हुसामुद्दीन दोनों मुत्तहद लश्कर के साथ हमीस की तरफ जाने वाली शाहिरा पर सुल्तान सैफुद्दीन से जा मिले। फिर जब वो हमीस शहर के नवा में हजरत खालिद बिन वलीद के मजार के करीब गए तो उन्होंने देखा कि उनसे पहले ही हजरत खालिद इब्न वलीद के मजार से मुत्तसिल खुले मैदानों में मंगोलों का लश्कर पड़ाव के उनका मुंतजिर था। सुल्तान सैफुद्दीन ने भी अपने लश्कर को मंगोलों के लश्कर के सामने पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। सुल्तान सैफुद्दीन ने अमीर तुर्निता और हुसामुद्दीन के साथ अपने लश्कर के सामने आया। थोड़ी देर तक सुल्तान मंगोलों के लश्कर का जायजा लेता रहा। फिर उसने बड़ी हैरत और परेशानी मिले जुले जज्बे में तुर्निता और हुसामुद्दीन की तरफ देखते हुए कहा, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मंगोल इस बार इस कदर बड़े लश्कर के लिए साथ हमारे सामने आए हैं। मेरे ख्याल में इससे बड़ा लश्कर के साथ वो कभी भी मुसलमानों के सामने नहीं आए होंगे। मेरे फर्जंदों, माजी में हमने अनगिनत बार मंगोलों का सामना किया, लेकिन आज का दिन मैं समझता हूँ कि सख्त और हमारे इम्तिहान और आजमाइश का दिन होगा। तुम देखते हो जहाँ तक निगाह काम करती है मंगोलों का लश्कर फैला हुआ है और कहने वालों का कहना है कि इस लश्कर की तादाद 3 लाख के लगभग है। मेरे फर्जंदों, फिक्रमंद मत होना। माजी में हम एक जान और मुत्तहद होकर दुश्मन पर ज़रबे लगाते हुए उसे अपने सामने भगाते रहे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जंग भी हमारी कामयाबी और हमारी कामरानी की नवीद लेकर आएगी। जंग के दौरान अपने लश्करों का हौसला बढ़ाते हुए रहना और उन्हें बताना कि हम मुट्ठी भर होने के बावजूद मंगोलों पर कहर मजम्मत बनकर छा जाने की हिम्मत रखते हैं। मेरे फर्जंदों, मेरा ख्याल है कि मंगोल हमारे साथ जंग की इब्तिदा करने में देर नहीं लगाएंगे, लिहाजा हमें भी अपने लश्कर को तरतीब देते हुए सफ़ें दुरुस्त कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही सुल्तान सैफुद्दीन बिल्कुल सुल्तान रुकनुद्दीन की तरह अपने घोड़े से उतरा। पहले बड़ी आजिज़ और बड़ी इंकिसारी में जमीन की नंगी पीठ पर किबला रू होकर खुदा के हुजूर सजदा रेज हुआ। इस मौके पर उसकी आंखों में आंसू थे और उसके कंधे पर जो अनोखा छा था वो बार बार ढलता जा रहा था। फिर सुल्तान सीधा होकर बैठा। दुआ के अंदाज में उसने अपने हाथ बुलंद किए। चंद लम्हों तक अजीब सी बेबसी और बेचारगी में आसमान की तरफ देखा। फिर सुल्तान की आवाज सुनाई दी, ऐ अल्लाह, तू ही ज़ंबान में कैद जज्बों के अमल की सूरत ढालता है। तू ही बेनूर उजालों में सूरज को तुलू और गुरूब करता है। तू ही मेरे अल्लाह सर कटे मनहूस काले लम्हों को हसीन रंगों की कहकशा बनाता है। जब तक सुल्तान सैफुद्दीन हाथ बुलंद के बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी में दुआएं मांगते रहे, अमीर तुर्निता और हुसामुद्दीन दोनों उनके दाएं बाएं खड़े थे। बुलंद के बार आमीन कहते रहे। इस मौके पर उन दोनों की आंखों से आंसू रवा थे और उनका जिस्म कपकपा रहा था। जिस वक्त सुल्तान सैफुद्दीन अपनी जगह से उठा तो तुर्निता और हुसामुद्दीन ने देखा सुल्तान सैफुद्दीन की आंखें भी आंसू की नमी से तर थी। बारी बारी उन्होंने तुर्निता और हुसामुद्दीन की तरफ देखा। पहले अपनी आंखें खुश्क की, फिर हल्की सी मुस्कुराहट में कहा, मेरे फर्जंदों, मेरे साथियों, मुझे उम्मीद है कि मेरे खुदावंद मेरा अल्लाह जो बड़ा मेहरबान है हमारे आंसू में भीगी दुआओं को जरूर कबूलियत अता फरमाएगा। आओ अब अपने लश्कर को इस्तवार करें और दुश्मन की जंग की इब्तिदा करने का इंतजार करें।
اس کے ساتھ ہی سلطان سیف الدین تورنیتا اور حسام الدین اپنے لشکر کو تیار کرنے لگے تھے۔ اپنے لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد سلطان سیف الدین تورنیتا اور حسام الدین یکجا ہوئے۔ تھوڑی دیر تک وہ جنگ کے طریقہ کار پر بڑی رازداری کے ساتھ صلح و مشورہ کرتے رہے۔ اس کے بعد پھر منگولوں کی پیش قدمی کا انتظار کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ منگولوں کے لشکر میں تھوڑی دیر تک عجیب سا سما رہا۔ وہ ڈھول اور دفے پیٹتے رہے، ساتھ ہی ساتھ عجیب طرح کی آوازیں نکالتے ہوئے وہ میدان جنگ میں وحشت برپا کرنے لگے تھے۔ لیکن سلطان سیف الدین تورنیتا اور حسام الدین اپنے لشکریوں کے ساتھ بالکل خاموش اور ان کی ہر حرکت سے بے پرواہ اور منتظر کھڑے تھے، یہاں تک کہ ہلاکو خان کے بیٹے ابقا خان نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ وسط کا حصہ اس نے اپنے سامنے رکھا، دائیں بائیں جانب اس نے دیگر سالار مقرر کر کے لشکر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان سیف الدین تورنیتا اور حسام الدین بڑی گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے رہے۔ جب منگول مزید آگے بڑھے تو ایک ساتھ سلطان سیف الدین تورنیتا اور حسام الدین حرکت میں آئے۔ اپنے گھوڑوں کو انہوں نے موڑا اور اپنی اگلی 3-4 صفوں کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ یہ سب کچھ شاید تینوں نے مل کر پہلے ہی طے کر لیا تھا، لہٰذا ان کے لشکروں پر بھی ان کے یوں اس طرح پیچھے آنے سے کوئی اثر نہ ہوا۔ منگول جب مزید آگے بڑھے تو ان پر ایک قیامت، ایک حشر برپا ہو گیا، اس لیے کہ سلطان سیف الدین کے لشکر کے اگلے صفے نے ان پر ایسی زوردار اور تیر انداز کی تھی کہ منگولوں کی اگلی تقریباً 3 صفیں بری طرح چھید کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ یہ تیر اندازی کا کمال تھا۔ پچھلی صفیں ابھی سنبھل ہی رہی تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے پھر بھاری پھلوں کی تیروں کی باڑیں ماری گئی۔ اس کے نتیجے میں منگولوں کے لشکر کی مزید صفیں تباہ ہو گئی تھی۔ اب منگول مزید سنبھل لے، وہ پیچھے ہٹے اور اپنے سامنے انہوں نے ڈھالیں کر لی تھی۔ سلطان سیف الدین کے لشکر کی طرف سے نیزوں کی کئی بوچھاریں مارنے والے منگولوں کے گھوڑوں کو ماری گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھوڑے بری طرح بدکتے ہوئے اپنے لشکر کے اندر گھستے ہوئے افراد تفریح برپا کرنے لگے تھے۔ بس اسی افراد تفریح سے سلطان سیف الدین تورنیتا اور حسام الدین نے فائدہ اٹھانے کا عزم کر لیا۔ وہ فوراً اپنے لشکر کے آگے پھر لشکر کو انہوں نے عام حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ گھوڑوں کے پیچھے سب سے پہلے سلطان سیف الدین منگولوں کے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ ور ہوا۔ سلطان کے ساتھ ہی امیر تورنیتا بھی منگولوں کے لشکر پر بائیں پہلو پر واری ہوا۔ اس نے بھی منگولوں پر تیز حملے شروع کر دیے تھے۔ امیر حسام الدین نے منگولوں کے لشکر کے دائیں پہلو کا رخ کیا تھا اور سلطان اور امیر تورنیتا کے ساتھ وہ منگولوں پر بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹ پڑا تھا۔ دونوں لشکر کے آپس میں یوں خونخواری اور طاقت و قوت کے ساتھ ٹکرانے سے میدان جنگ کی حالت یکسر بدل گئی تھی اور دور دور تک تلواروں کی اور ڈھالوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ حضرت خالد ابن ولید کے مزار کے قریب کھلے میدانوں میں تھوڑی دیر تک منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ منگولوں کا خیال تھا کہ چونکہ ان کے مقابلے میں سلطان سیف الدین کے لشکر کی تعداد 6 گنا سے بھی کم ہو گئی، لہٰذا وہ بہت جلد مسلمانوں کو شکست دے کر میدان جنگ سے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن جو جنگ طول پکڑتی جا رہی تھی، ان کے اوزان خطا ہوتے جا رہے تھے، اور جب ان کے کانوں میں خبر پڑنے لگی کہ سلطان تورنیتا اور حسام الدین نے بری طرح منگولوں کا قتل عام شروع کر رکھا ہے، تو ان کے خونخوار اور وحشت بھرے ولولے برف ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمان منگولوں پر ساون کے برستے بادلوں کی طرح چھانا شروع ہو گئے۔ منگول لشکری جو تھوڑی دیر پہلے پچھلی صفوں سے لپک کر اگلی صفوں میں حملہ ور ہونے کے لیے بڑھ رہے تھے، اب وہ اگلی صفوں سے پچھلی صفوں کی طرف جانا پسند کر رہے تھے، جبکہ بعض مقامات پر مسلمان لشکر بری طرح ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا قتل عام کرنا شروع کر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ پورے منگول لشکر میں بددلی اور افراتفری کی لہر پھیلنا شروع ہو گئی، اس لیے کہ ان کے لشکر کے بائیں پہلو کو بری طرح کاٹتے ہوئے تورنیتا ان کا قتل عام شروع کر چکا تھا۔ سلطان سیف الدین وسطی لشکر کو پوری طرح ادھیڑ کر ان کی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بائیں جانب حسام الدین بھی بری طرح دشمن پر ٹوٹ پڑا تھا۔ منگولوں کے حکمران اور ہلاکو خان کے بیٹے ابقا خان نے جب تیزی سے تباہ ہوتے ہوئے اپنے لشکر کو دیکھا تو اس نے شکست تسلیم کرتے اپنے لشکر کو پسپا ہو کر بھاگنے کا حکم دے دیا۔ جو ہی منگول سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے، سلطان نے فوراً حسام الدین کو اپنے پڑاؤ کے اندر موجود لشکر کی خواتین کی حفاظت پر چھوڑا، ساتھ ہی اسے یہ بھی حکم دیا کہ منگولوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ لے۔ خود سلطان نے امیر تورنیتا کے ساتھ منگولوں کو تعقب شروع کر دیا۔ منگول بدکتے ہوئے گھوڑوں کی طرح سلطان سیف الدین اور تورنیتا کے آگے آگے بھاگتے رہے اور وہ دونوں بری طرح ان کی پشت کی طرف سے ضربے لگاتے ہوئے ان کی تعداد کم کرتے رہے۔ یہ تعاقب منگولوں کے مرکزی شہر مراغہ تک جاری رہا اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے ابقا خان کی ساری عسکری قوت ایک طرح سے سلطان سیف الدین اور تورنیتا نے تباہ اور برباد کر کے رکھ دی تھی۔
सुल्तान सैफुद्दीन और तुर्कताई दोनों अपने लश्कर के साथ ताक़ुब करते हुए मंगोलों के मरकजी शहर मुराका का मुहासरा कर लेना चाहते थे और उसी दौरान अक्का के छोटे भाई अहमद ने जो इस्लाम कबूल कर चुका था अंदर ही अंदर सुल्तान सैफुद्दीन की तरफ पैगाम भिजवाया और गुजारिश की कि मुराका का मुहासरा ना किया जाए और यह भी यकीन दिला कि वो अक्का खान को मुसलमान से टकराने और उन पर हमलावर होने की खुद सजा देगा। अहमद की तरफ से पैगाम मिलने के बाद सुल्तान ने और तुर्कताई अपने लश्कर के साथ मंगोलों के मरकजी शहर के करीब से वापस लौट गए। उनके पहुंचने तक हुसामुद्दीन ने मंगोलों के पड़ाव की हर चीज सीमेट कर अपने पड़ाव में मुंतकिल कर ली थी। मंगोलों के पड़ाव से जहां हुसामुद्दीन को खुराक के अनगिनत जखायर मुयस्सर आए, वहां नकदी के अलावा हथियारों के बड़े बड़े जखायर भी हाथ लगे थे। अपने सफेद रंग के घोड़े पर सवार तुर्कताई जब अपने खीमे के करीब आया तो उसने देखा बदहवास और बेचैन सी रुदा खीमे से भागती हुई निकली और उसके घोड़े के करीब आकर उसकी टांग पकड़कर खड़ी हो गई। फिर वो बड़ी परेशान कुन लहजे और गमजदा आवाज में पूछने लगी, आप ठीक तो है? जवाब में तुर्कताई ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मुझे? रुदा फिर फिक्रमंदी में उसके लिबास और उसके घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, जरा अपने लिबास और घोड़े की हालत तो देखे। तुर्कताई अपने घोड़े से नीचे उतरा। उसने देखा मंगोलों के खून से उसका लिबास तर था और सफेद घोड़ा भी मंगोलों के खून से तितर बितर होता रहा था। ये सूरत हाल देखते हुए तुर्कताई मुस्कुराए, फिर रुदा का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहने लगा, देख रुदा, तुझे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। क्या तू मुझे मुबारकबाद ना देगी कि हमने मंगोलों के 3 लाख के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है? ये जो मेरे लिबास और मेरे सफेद घोड़े पर तू खून देख रही है, ये सब मंगोलों का खून है। रुदा जवाब में कुछ ना बोली। पहले उसने घोड़े को अपने खीमे की तरफ बांध दिया, फिर तुर्कताई का हाथ पकड़कर वो अंदर ले गई। खीमे में जाकर वो तुर्कताई से लिपट गई, फिर प्यार भरी और मिठास से भरपूर आवाज में कहने लगी, मैं आपको आपकी मुबारक फतह पर मुबारकबादी पेश करती हूँ। तुर्कताई बिदक कर पीछे हट गया, मेरे साथ लिपटो नहीं, तुम्हारा लिबास खराब हो जाएगा। रुदा फिर आगे बढ़ी और बुरी तरह तुर्कताई से लिपट गई। कहने लगी, अगर लिबास खराब होता है तो हो जाए, आपका लिबास भी तो खराब है, मैं आपसे मुख्तलिफ तो नहीं, आप ही की जात का एक हिस्सा हूँ। रुदा के इस जवाब में तुर्कताई मुस्कुरा कर रह गया। फिर रुदा अपना लिबास तब्दील करने के बाद तुर्कताई का लिबास भी तब्दील करने लगी थी। मंगोलों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद सुल्तान सैफुद्दीन ने चंद रोज तक मैदान जंग ही में क़याम किए रखा। फिर उन्होंने वहां से कूच किया और अपने लश्कर के साथ वो दमिश्क में दाखिल हुए। दमिश्क में क़याम के दौरान सुल्तान सैफुद्दीन अचानक बीमार हो गया। बीमारी के दौरान सुल्तान ने खुदावंद की हुजूर मन्नत मानी कि अगर वो सेहत याब होगा तो काहिरा में एक अदीमुल मिसाल अस्पताल कायम करेगा। चुनांचे जब खुदावंद ताला ने सुल्तान को मर्ज से निजात दी तो सुल्तान ने दमिश्क की वाली की हैसियत से हुसामुद्दीन को दमिश्क ही में रखा, जबकि अपने लश्कर के साथ वो तुर्कताई के हमरा दमिश्क से काहिरा की तरफ कूच कर गया। काहिरा में पहुंचते ही सुल्तान ने अपनी मन्नत के मुताबिक अस्पताल तामीर किया, जो बेमिसाल था। इस अस्पताल के अखराजात पूरे करने के लिए तकरीबन 10 लाख दिरहम सालाना के औकाफ मुकर्रर किए गए थे और ये अस्पताल तमाम मरीज इंसानों, अमीर और गरीब औरतों मर्दों के लिए बिला तखसीस था और इसमें औरतों के लिए भी ऐसे ही अलहदा कमरे बनाए गए थे जैसे मर्दों के लिए थे। बीमार औरतों की तीमारदारी के लिए वैसी ही तरबियत याफ्ता औरतें रखी गई थी जैसे मर्दों के लिए तरबियत याफ्ता तीमारदार और खुद्दाम मुकर्रर थे। इस अस्पताल में एक बड़ा शोबा मुख्तलिफ बुखारों के मरीजों के लिए मुख्तलिफ था। एक शोबा अमराज चश्म में मुब्तला लोगों के लिए, एक जर्राही से ताल्लुक रखने वाले मरीजों के लिए खातिर, एक और शोबा पेशिश और उसके नवा के दूसरे मरीजों के लिए मखसूस था। इसके अलावा इस अस्पताल में बावर्ची खाने, दर्स और तकरीर के कमरे, तिब्बी आलात और दवाओं के ज़खायर गाह, अतबा और दूसरे अमले के रहने के मकानात भी थे। बीमारिस्तान अल कबीर अल मंसूरी का क़याम सुल्तान सैफुद्दीन का एक अजीम शान कारनामा शुमार किया जाता है। इस अस्पताल के अलावा सुल्तान ने अपनी सल्तनत में और भी कई शिफा खाने कायम किए, मदरसे बनाए, मस्जिदें बनाई। सुल्तान की तामीर करदा मस्जिद में जामिया अल मंसूरी बड़ी शोहरत की हामिल थी। दूसरी जानिब हिलाकू का बेटा और मंगोलों का हाकिम अक्का खान सुल्तान सैफुद्दीन और तुर्कताई हुसामुद्दीन के हाथों शिकस्त खाने के बाद जब अपने मरकजी शहर मुरागा पहुंचा तो उसका छोटा भाई अहमद, जो इस्लाम कबूल कर चुका था, अपने मुसलमान साथियों के साथ हरकत में आया और उसने अक्का का खात्मा कर दिया। अक्का का खात्मा करने के बाद अहमद सुल्तान अहमद के नाम से मंगोलों का हुक्मरान बना। इस तरह हिलाकू के बाद पहली बार उसका एक बेटा इस्लाम कबूल करने के बाद मंगोलों ही की एक मुसलमान सल्तनत कायम करने में कामयाब हुआ। सुल्तान अहमद ने मुराका शहर में तख्त नशीन होती ही सुल्तान सैफुद्दीन के साथ दोस्ताना मरासिम कायम करने का इरादा किया। चुनांचे उसने एक दोस्ताना सफारत मुरतब की और इस सफारत का सरबराह उसने मशहूर आलिम दीन अल्लामा कुतुबुद्दीन शिराजी को बनाकर काहिरा की तरफ रवाना किया। अल्लामा कुतुबुद्दीन शिराजी एक बहुत बड़े आलिम दीन थे। शिराज में पैदा हुए, फलसफा, इल्म, तिब,
हियत के नामवर आलिम थे और सुल्तान अहमद की हुकूमत के मुआहिदीन में शुमार होते थे। इल्म हियत में उनका उस्ताद ख्वाजा नसरुद्दीन तूसी था। तिब की तालीम उन्होंने पहले अपने बाप फिर उस दौर के दूसरे सरबरा हुक्मा से हासिल की थी। इल्म के बाद साल सैर सियाहत में मशगूल रहे, फिर मंगोल हुकूमत में सबवास के काजी मुकर्रर हुए। उस वक्त की सियासत में नुमाया हिस्सा लिया। आखिरी उम्र में तबरेज में इकामत इख्तियार कर ली और वही वफात पाई। जब अल्लामा कुतुबुद्दीन शिराजी की सरबराही में सुल्तान अहमद का यह वफद बहुत से तहाइफ लेकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ तो सुल्तान ने उस सफारत की पेशवाई के लिए 1500 मुसले जवान को रवाना किया। चुनांचे सुल्तान अहमद के सफीरों को ये मुसले जवान अपने जुलूम में लेकर बड़ी शान और शौकत से काहिरा में दाखिल हुई। सुल्तान ने सिफारत के अराकीन को शानदार महलों में ठहराया और उनके ख्वाब खातिर मदारत की। सुल्तान की नई सल्तनत के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम कर होते हुए बड़ी मुसरत का इजहार किया और सुल्तान अहमद के लिए कई पेशबा तोहफे भी रवाना किए। इस तरह मंगोलों और सुल्तान सैफुद्दीन के दरमियान दोस्ताना और बिरादराना ताल्लुकात कायम हो गए थे। सुल्तान सैफुद्दीन ने एक रोज काहिरा के केसर के दारुल मजालिस में अपने मशीरों अपने सालारों के साथ किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि सुल्तान सैफुद्दीन का चौकीदार अंदर आया। सुल्तान को सलाम पेश किया, फिर मुखातिब हुआ। सुल्तान अर्ज शाम की तरफ से 2 मुखबिर आए हैं और वो आपकी खिदमत में कोई अहम खबर पेश करना चाहते हैं। सुल्तान सैफुद्दीन ने फौरन उन मुखबिरों को अंदर लाने को कहा। सुल्तान सैफुद्दीन का हुक्म पाते ही वो चौकीदार बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद सुल्तान के 2 जासूस अंदर आए। सुल्तान के सामने आकर उन्होंने सुल्तान को सलाम पेश किया। फिर सुल्तान की आवाज महल में गूंज गई, कहो तुम अर्ज शाम की तरफ से हमारे लिए क्या खबर लेकर आए हो। इस पर एक जासूस बोल पड़ा, सुल्तान नसरानी सलीबी टेम्पलर्स और हॉस्पिटलर्स इसके अलावा और दीगर बहुत से इलाकों के सलीबी रजाकार हमसे फैसला कुन जंग करने के लिए अपनी तैयारियों को उरूज पहुंचा चुके हैं। सुल्तान इसके अलावा हिलाकू खान के बेटे अक्का खान की मौत के बाद जो मंगोल सुल्तान अहमद के हाथ पर ईमान नहीं लाए वो अपने कदीम मजहब पर कायम रहे हैं और वो अक्का के हम नवा है और वो भी भाग कर नसरानियों से आ मिले हैं। उन लोगों का कहना है कि वो मुसलमानों के सुल्तान सैफुद्दीन से अपनी गुज़िश्ता शिकस्तों का हौलनाक इंतकाम लेंगे। इसी बिना पर उन लोगों ने अल मराकब नाम के किले के अंदर खुराक और हथियारों के ढेर लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि मुसलमानों के साथ ना खत्म होने वाली जंग की इब्तिदा की जाए। सुल्तान सलेबियों का सबसे बड़ा मरकज तराबलस है। तराबलस शहर सलेबियों के एक अहम मरकजी की हैसियत इख्तियार कर चुका है। नफ्ती इलाकों के अक्सर सलेबी टेम्पलर्स, हॉस्पिटल्स और दीगर रजाकार उस शहर में आकर आबाद हो चुके हैं और उन्होंने भी अहद कर रखा है कि हर सूरत में मुसलमानों से अपनी गुज़िश्ता शिकस्तों का इंतकाम लेंगे। सुल्तान सलेबों का तीसरा बड़ा मरकज इन दिनों अल बतरून नाम का एक किला है। कोई इस किले के अंदर कोई बड़ा लश्कर मौजूद नहीं, ताहम सलेबियों ने इस किले के अंदर खुराक और अपने लिए हथियारों के ज़खायर जमा कर रखे हैं और उनका इरादा है कि तराबलस और अल मरकब में अगर जरूरत पड़े तो वहां से हथियार और खुराक फिलफौर उन दोनों किलों और शहरों में मुंतकिल की जा सके। सुल्तान गो अर्ज़ फिलिस्तीन में अक्का नसरानियों का सबसे बड़ा मरकज है, लेकिन लगता है अक्का के अंदर जो नसरानी और सलेबी कुव्वत है वो मुसलमानों से टकराने का खतरा नहीं मोल लेना चाहती और इसी बिना पर ये लोग तराबलस और अल मराकब और अल बतरून के सलेबी जंगजुओं के साथ ताउन नहीं कर रहे। सुल्तान अक्का के जंगजू सलेबी उनका अपने दूसरे सलेबियों से गैर जानबदाराना हमारे हक में बेहतर और सूदमंद साबित हो सकता है। सुल्तान ने इन जासूसों की सारी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुना। जब वो खामोश हो गए तो सुल्तान की आवाज फिर सुनाई दी, मेरे अजीजों तुम दोनों जाकर आराम करो, इसके बाद अपने काम में लग जाओ। अब इस कार्रवाई को निपटना हमारा काम है। इसके साथ ही जब वो दोनों जासूस बाहर निकल गए तो सुल्तान ने अपने पहले में बैठे तुर्निताई की तरफ देखा और उससे मुखातिब किया, तुर्निताई मेरे बेटे अब बोलो तुम्हारे इस सिलसिले में क्या ख्याल है। तुर्निताई ने फौरन सुल्तान सैफुद्दीन को मुखातिब करके कहना शुरू किया, सुल्तान मैंने इस सिलसिले में क्या कहना है, आपका फैसला मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। जो भी आप फैसला करेंगे आप जानते हैं तुर्निताई आंखें बंद करके आपके साथ ही है और जिस वक्त भी आप तुर्निताई को टकराने का हुक्म देंगे तुर्निताई खुदावंद ने चाहा तो आपको मायूस नहीं करेगा। सुल्तान ये तराबलस अल मराकब अल बितरून के चंजो ईसाई कितनी भी ताकत और कुव्वत पकड़ ले, लेकिन जब हम उन पर वारिद होंगे तो उन्हें अपने सामने उनको किसी भी हाथ में टिकने नहीं देंगे। सुल्तान ने कुछ सोचा, उसके बाद तुर्निताई को मुखातिब किया, तुर्निताई मेरे बेटे तुम्हारे ख्याल में हमें अपनी मुहिम का आगाज किस किले से करना चाहिए। तुर्निताई फौरन बोल पड़ा, सुल्तान मेरे ख्याल में हमें सबसे पहले अल मरकब किले को अपना हदफ बनाना चाहिए। 3 किले जिनका जिक्र जासूसों ने किया है उनमें सबसे पहले हम मुस्तहकम और मजबूत तराबलस का शहर और किला है। मेरा इरादा है कि पहले हम अल मरकब पर हमलावर हो,
ظاہر ہے کہ المرکب میں جو صلیبی شکست کھائیں گے وہ طرابلس کی طرف بھاگیں گے۔ اس کے بعد ہم طرابلس کا رخ کریں گے اور طرابلس میں سارے صلیبی کو بدترین شکست دیں گے اور کوشش کریں گے کہ انہیں طرابلس سے بھاگ کر کسی اور سمت نہ جانے دیا جائے۔ اس طرح طرابلس میں اگر ہمارا قبضہ کر لیتے ہیں تو صلیبی قوت ایک طرح سے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد جو تیسرا البترون نام کا قلعہ ہے وہ چھوٹا ہے، اس میں زیادہ تر خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر ہیں اور میرے خیال میں اس پر قبضہ کرنے میں ہمیں کچھ زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تورنتائی کی اس گفتگو سے سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کے بعد وہ دوبارہ بول پڑا، تورنتائی میرے بیٹے، ان جاسوسوں نے ہمارے علم میں ایک طرح کا اضافہ ضرور کیا ہے، لیکن تم جانتے ہو ان تینوں ٹیلوں پر ہم پہلے ہی حملہ کرنے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ طرابلس کی صحیح فرما رواؤں نے منگولوں کے ساتھ سازباز کی تھی اور منگولوں کے خلاف نکلتے وقت میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ طرابلس کو اپنا ہدف ضرور بناؤں گا، لہٰذا میں تمہارے اس طریقہ کار کو تسلیم کرتا ہوں۔ پہلے المرکب کا رخ کیا جائے گا، اس کے بعد طرابلس اور آخر میں البترون قلعے پر حملہ ور ہو جائے گا۔ دیکھ میرے بیٹے، 2 دن بعد لشکر یہاں سے روانہ ہوگا، تم لشکروں کو کوچ کی تیاری کرنے کا حکم دے دو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان سیف الدین نے اجلاس برخاست کر دیا تھا۔ اپنی گھوڑے کی باگیں تھامے تورنتائی اپنے حویلی میں داخل ہوا۔ گھوڑے کو اس نے استبل میں باندھا، اس کی زین اور دھاندہ اتار کرنے کے بعد اس کے سامنے چارہ ڈالا، پھر وہ باہر نکلنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ دنگ رہ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پیچھے رودا کھڑی ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں بس تورنتائی کو دیکھی چلی جا رہی تھی۔ رودا کو استبل میں اس حالت میں کھڑے دیکھ کر تورنتائی بھی مسکرانے لگا۔ اس نے چاہت بھری آواز میں پوچھا، رودا تم استبل میں کب داخل ہوئی؟ آپ کے استبل میں داخل ہونے کے بعد میں دبے پاؤں یہاں آئی تھی، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ کے حرکات اور چہرے کے تاثرات کیا ہیں۔ سیف الدین نے جو آج مجلس منعقد کی تھی اس کے کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ یہ بات رودا نے انتہائی خوشگوار اور شہید بھری مسکراہٹ میں کہی تھی۔ جواب میں تورنتائی بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، پھر تم نے میرے چہرے اور حرکات اور سکنات سے کیا اندازہ لگایا ہے؟ رودا فوراً بول پڑی، آپ کے حرکات اور سکنات اور آپ کا چہرہ کہتا ہے کہ آپ بہت جلد لشکر یہاں سے ارض فلسطین کی طرف کوچ کرے گا۔ اس پر تورنتائی کھل کر ہنس دیا اور کہنے لگا، لگتا ہے تو نے اب میرے ساتھ ہی چکر بازیاں کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ بات تو میں کئی روز پہلے ہی تمہیں بتا چکا ہوں کہ لشکر عنقریب ارض فلسطین کی طرف کوچ کرے گا۔ یہ بات تم میرے چہرے سے کیسے اندازہ لگا کر کہہ سکتی ہوں؟ جواب میں رودا ہلکا ہلکا مسکرا کر کہنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تورنتائی کا مضبوط ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اچھا چھوڑو ان باتوں کو، آئے پہلے کھانا کھائے۔ میں نے آپ کو کچھ لباس بھی مکمل کیے ہیں، وہ پہن کر مجھے دکھائے، اور ہاں میں یہ بھی پہلے آپ کو بتا دوں کہ ارض فلسطین کی اس مہم میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ جواب میں تورنتائی نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا اور رودا ایک طرح سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے حویلی کی سکونتی حصے کی طرف لے جا رہی تھی۔ 2 دن بعد سلطان سیف الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ قاہرہ سے کوچ کیا۔ لشکر کا رخ اب ارض فلسطین کے مشہور قلعہ المرکب کی طرف تھا۔ کوہستانی سلسلے کے اندر المرکب ایک انتہائی مستحکم اور مضبوط قلعہ تھا۔ سلطان اور تورنتائی دونوں المرکب پہنچے۔ یہ سلطان رکن الدین کے بعد پہلا موقع تھا کہ سیف الدین اور تورنتائی صرف 2 نے کسی نصرانی شہر یا قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ قلعے کے سامنے سلطان سیف الدین نے اپنے لشکر کو قیام کرنے کا حکم دیا۔ آن کے آن میں قلعے کے قریب خیموں کا ایک شہر آباد کر دیا گیا اور خیمہ قلعے سے اتنے فاصلے پر نصب کیے گئے تھے کہ اگر قلعے سے چھوٹی منجوقوں کے ذریعے سنگباری یا تیر اندازی کی جائے تو خیموں تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد سلطان نے اور تورنتائی نے اپنے کچھ دیگر سالاروں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ لیے۔ تب سلطان نے تورنتائی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تورنتائی میرے بیٹے، اب کہو المرکب پر ہمیں کس انداز میں حملہ ور ہونا چاہیے، اور کیا المرکب کی فتح کی تکمیل کے لیے ہمیں حسام الدین کو بھی دمشق کی طرف پیغام بھجوانا چاہیے کہ وہ بھی ایک لشکر لے کر دمشق سے المرکب پہنچ جائے؟ جواب میں تورنتائی نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا، سلطان میرے خیال میں ابھی حسام الدین کو نہ بلایا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ المرکب پر بڑا مضبوط قلعہ ہے، چٹانوں سے گھرا ہوا ہے، اس کی فصیلوں کو توڑنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے باوجود اسے ہم فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان ہمیں اب کسی اور سمت سے کوئی خطرہ نہیں، ہاں صرف طرابلس کی طرف سے اہل المرکب کو رسد اور کمک کی صورت میں امداد پہنچ سکتی ہے، اس لیے عقا والے بالکل غیر جاندارانہ رویے کا اظہار کرتے رہیں گے۔ ہم صرف اس شاہراہ کو نگاہ میں رکھیں گے جو طرابلس سے المرکب کی طرف آتی ہے۔ سلطان شہر پر ہم آہستہ آہستہ حملوں کی ابتدا کریں گے، محاصرے کو طول دینے کی کوشش کریں گے اور شہر کی گرد اور نواح پر ایسی کڑی نگاہ رکھیں گے کہ نہ کوئی شخص شہر سے باہر نکل سکے نہ شہر میں داخل ہو سکے۔ اس طرح المرکب شہر میں خوراک کی جو ذخائر ہے وہ جب ختم ہونے کے قریب آ جائیں گے تو پھر اس کو 2 میں سے ایک نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اول یہ کہ المرکب میں محصور ٹیمپلرز، ہاسپٹلرز اور دیگر صلیبی رضاکار شہر سے باہر نکل کر ہم سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے، اور اس کوشش میں مجھے امید ہے کہ ہم انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ اور دوسری ہے کہ شہر کے جنگجو محاصرین ہم سے صلح کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم انہیں صلح کی تکمیل پر مجبور کریں گے۔ تو نتائج جب خاموش ہوا تو سلطان بول پڑا،
तो निताई मेरे बेटे दो के अलावा तीसरी सूरत भी हो सकती है। तो निताई ने फौरन पूछ लिया, वो क्या सुल्तान? सुल्तान कहने लगा, तो निताई मेरे बेटे ये भी तो हो सकता है कि जब हम मुआसरे को तूल देते हैं तो इस तूल के दौरान हम बार बार शहर पर हमलावर हो, तो उन हमलों के दौरान शहर हमारे हाथों फतह हो जाए। तो निताई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। सुल्तान, आपका कहना दुरुस्त है, बल्कि मैं यूं कह सकता हूँ ये तीसरा नतीजा जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो सबसे पहले रूनुमा हो सकता है, और हम कोशिश भी करेंगे कि मुआसरे को तूल देने के साथ साथ शहर पर तेज हमले किए जाएं और शहर की फसिल पर चढ़ने या शहर की फसिल को तोड़कर शहर में दाखिल होने की कोशिश की जाए। इस तरह हम मुआसरे के दौरान ही अल-मरकब शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो सकते हैं। सुल्तान मोहतरम, मेरा ख्याल है कि अभी हुसैनुद्दीन को ना बुलाया जाए। इसमें शक नहीं कि अल-मुराकब बड़ा मजबूत किला है, चट्टानों से घिरा हुआ है। सुल्तान मोहतरम, अल-मुराकब पर यह हमलावर होने के लिए मेरी एक और भी तजवीज़ है, और वो है कि हम अल-मुराकब की सिर्फ एक ही सिम से हमलावर हों और मुहासरे को तूल देते चले जाएं। अगर नताइज हमारे ख्वाहिश के मुताबिक नहीं निकलते तो फिर हम आखिरी हरबा इस्तेमाल करते हुए शहर फतह कर सकते हैं। इस मौके पर सुल्तान ने तेज निगाहों से सैफुद्दीन की तरफ देखा। तो निताई मेरे बेटे, खुलकर कहूँ क्या कहना चाहते हो? तो निताई फिर बोल पड़ा, सुल्तान, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो मंजिक़े हैं उन्हें एक तरफ नस्ब कर दिया जाए, यानी उस सिम जहां हमने पड़ाव कर रखा है, और उसी सिम से शहर पर हमला किया जाए। जब तक शहर फतह नहीं होता फिर हम आखिरी हरबा ये इस्तेमाल करेंगे कि आप किसी भी रात इसी सिम से मंजिकों के जरिए संगबारी करते रहे और शहर पर हमलावर होने की कोशिश करते रहे, और मैं अपने लश्कर के एक हिस्से के साथ दूसरी सिम जाऊंगा और शहर की फसिल पर चढ़ने की कोशिश करूंगा। सुल्तान, जब हम एक सिम से शहर पर हमलावर होते रहेंगे तो शहर के मुहाफिज भी उसी सिम अपना दिफा करने के आदी हो जाएंगे और दूसरी सिम को ध्यान ना दे सकेंगे। इससे मैं फायदा उठाऊंगा और शहर में दाखिल होने की कोशिश करूंगा। सुल्तान सैफुद्दीन ने तुर्निता की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर सुल्तान के हुक्म पर पड़ाव से आगे मंजिक़ें नस्ब की जाने लगी। सुल्तान और तुर्निता ने लगातार 38 रोज तक अल-मुराकब नाम के किले और शहर का मुआसरा किए रखा। उसी दौरान वक्फे से शहर पर मंजिकों के जरिए शहर पर संगबारी जाती रही। साथ ही साथ तीरों की बौछारें मारते हुए मंजिकों के सामने वाले हिस्से से हमलावर भी होता रहा। सबसे बढ़कर ये किले के अतराफ में सुल्तान सैफुद्दीन ने अपने लश्कर के फैला दिए थे, और वो किले के अंदर महसूर सलेबी लश्कर के लिए किसी भी किस्म की इमदाद या खुराक नहीं आने दे रहे थे। इस तरह किले के अंदर महसूर टेम्पलर्स, हॉस्पिटल्स और दीगर सलेबी रजाकार मायूस होने लगे थे, और उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो किले से बाहर निकलकर अचानक सुल्तान सैफुद्दीन के लश्कर पर शब मारेंगे और नाक़ाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन सुल्तान सैफुद्दीन और अमीर तुर्निता के जासूस भी अपना काम कर रहे थे। उन्होंने एक रोज पहले ही सुल्तान सैफुद्दीन को आगाह कर दिया था कि आने वाली शब सलेबी जंगजुओं के अल-मरकब के किले से निकलकर मुसलमानों के लश्कर पर शब खुर मारने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आने वाली शब को सुल्तान अपने मुखबिरों की खबर देने के बाद मुस्ताद और चौकस हो गया था। आने वाली आधी रात के करीब जबकि चारों तरफ हवा का आलम था, शहर नींद से बगलगीर हो रहा था, ऐसे में सुल्तान सैफुद्दीन के लश्कर को बदहवास करने के लिए नजदीक आकर सलेबों ने मिलकर रगों की बंदिश में अजीब तरह के जहर भरे लहजे के नारे लगाते हुए सैफुद्दीन के लश्कर की गहरी नींद से जब हड़बड़ाहट के उठे तो अचानक उन पर हमलावर होकर उनकी जिंदगियों को खात्मा कर दे। नारे लगाते हुए सलेबी सुल्तान सैफुद्दीन के लश्कर पर जिंदगी के मुसाफतों को बेसमर करते, खोलते, बिखरते अलावी की तरह हमलावर हो गए थे। हमलावर सलेबी यही ख्याल कर रहे थे कि सुल्तान और उसके लश्करी गहरी नींद सो रहे होंगे, और जब वो हड़बड़ा कर बेदार होंगे तो उनका कत्लेआम शुरू कर चुके होंगे। लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। सुल्तान सैफुद्दीन ने रात के पहले हिस्से ही में दुश्मन के हमले की रोकथाम करने के लिए अपने सारे इंतजाम मुकम्मल करने लगे थे। जिस जगह सलीबी हमलावर हुए थे उस जगह सुल्तान सिर्फ अपने हिस्से के लश्कर के साथ मौजूद था, जबकि तुर्निताई को सुल्तान ने जरा बाएं जानिब करते हुए घात में बैठा दिया था, ताकि रात की तारीकी में जब दुश्मन हमलावर हो और वो सुल्तान सैफुद्दीन के साथ पूरी तरह उलझा जाए तो अमीर तुर्निताई पुष्ट की जानिब से दुश्मन पर हमलावर होकर उसके सारे दमखम निकाल कर रख दे। इसलिए कि सुल्तान ने इसके जासूस की इस हमले से मुतालिक पहले ही आगाह कर चुके थे। आधी रात के करीब जिस वक्त सलीबी हमलावर हुए तो उस वक्त सुल्तान सैफुद्दीन अपने लश्कर के साथ अपने अथाम में जागते बेदार तूफानों की तरह चौकस था। सुल्तान के हिस्से के लश्कर पर हमलावर हुए सुल्तान भी अपने लश्कर को गिरदिश दौरान की दीवान खानों की तरह जवाब हमला कर दिया था। थोड़ी देर तक हमलावर सलेबियों और सुल्तान सैफुद्दीन के दरमियान रात की तारीकी में हौलनाक जंग होती रही। फिर एक इनकलाब रूनुमा हुआ और वो इसी तरह के सलीबियों के लश्कर की पुष्ट की जानिब से सन्नाटों की फिजाओं में तीर बुलंद हुए और अमीर तुर्निताई ने उन पर हमला कर दिया था। अब सूरत यह लेती कि शबखुर मारने वाले सलेबी दरमियान में गिर गए थे। सामने की तरफ से सुल्तान अपने हिस्से के लश्कर के साथ उन पर नाकाबिले बर्दाश्त ज़रबे लगा रहा था।
पुष्ट की जानिब से तुर्निताई एक अजाब की तरह सलीबियों को बुरी तरह काटते हुए उनकी तादाद बड़ी तेजी से कम करना शुरू कर दी थी। चारों तरफ खिजा के आसार, अंचलों में दुख के खंजर चलने लगे थे। रात की तारीकी में दोनों जानिब से हमलावर सलीबियों का खात्मा होता रहा। बड़ी तेजी से तलवारें हुलकुम काटती रही और हमलावरों की तादाद कम करती चली गई। सलीबियों ने जब सबसे बड़ी हिमाकत ये की कि वो अलमरकब नाम के किले से निकलकर जिस वक्त वो शबखुन मारने के लिए सुल्तान के लश्कर पर वारिद हुए थे, अपने पीछे उन्होंने शहर के उस दरवाजे को बंद नहीं करवाया था जिससे निकलकर वो हमलावर हुए थे। उनका इरादा था कि वो कामयाब शबखुन मारने के बाद पलटेंगे और दोबारा शहर में दाखिल होकर महसूर हो जाएंगे, लेकिन हालात अब ऐसे नहीं रहे थे जैसा उन्होंने सोचा था। सलीबियों ने जब ये देखा कि उनका शबखुन नाकाम रहा और एक जिस वक्त उन्होंने शबखुन मारा था सुल्तान सैफुद्दीन अपने लश्कर के साथ पूरा चौकस और बेदार था, और जब उन पर यह इंकिशाफ हुआ कि पुष्ट की जानिब से सुल्तान के सालार अमीर तुर्निताई ने हमलावर होकर उन्हें बुरी तरह काटना शुरू कर दिया है और ये उनके लश्कर की तादाद काफी हद तक कम हो गई है, तो ये ऐसे बदहवास हुए कि आपस में सुलह और मशवरा करने के बाद वो बाएं तरफ मुड़े और अमीर तुर्निताई से बचने की कोशिश करते हुए शहर के खुले दरवाजे की तरफ भाग गए थे। सुल्तान सैफुद्दीन अपने लश्कर के साथ उनके ताकुब में लग गया था। तुर्निताई ने भी भागते हुए तुर्निताई की नसरानियों की राह रोकने की कोशिश नहीं की। सुल्तान के साथ वो भी अपने पीछे हो लिया। इस तरह जब सलीबी सुल्तान सैफुद्दीन और तुर्निताई के आगे आगे भागते हुए शहर में दाखिल हुए तो उनके साथ ही साथ उन पर जरबे लगाते हुए सुल्तान और तुर्निताई भी शहर में दाखिल हो गए। शहर में एक बार फिर खुमसान का रंग पड़ा जिसमें सलीबियों को बदतरीन शिकस्त हुई और जो सलीबी बच गए वो इधर उधर छुप कर अपनी जानें बचाने की फिक्र में लग गए थे। इस तंग और दौर में कोशिश में सुबह का सूरज भी तुलू हो गया। दूसरे रोज सलीबी रजाकार टेम्पलेस और हॉस्पिटल्स को जब खबर हुई कि शहर पर पूरी तरह सुल्तान सैफुद्दीन का कब्जा हो गया है तो बड़ी बदहवास हुए और फिर जोग दर जोग सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर अपने रवैये पर माफी के तलबगार होने लगे। सुल्तान ने उन लोगों के साथ इंतहा फयाजाना बर्ताव किया। सुल्तान ने उन लोगों को इजाजत दी कि वो मनकुला जायदाद में से जितनी उठा सके साथ लेकर जाए जहां चले जाए, अलबत्ता उनको हथियार ले जाने की ममानियत कर दी गई थी। मशहूर मौरिक अबुल फदा का बयान है कि जिस फौज ने अलमरकब को तस्खीर किया उसमें वो खुद भी शरीक था। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी और उसे पहली मरतबा जंग का तजुर्बा अलमरकब ही में हुआ। उसका कहना है कि माफ की जाने वाले सलीबी अलमरकब से निकलकर तराबलस की तरफ चले गए थे। सुल्तान सैफुद्दीन और अमीर तुर्निताई दोनों ने चंद रोज तक अलमरकब ही में क़याम किया और वहां के हालात और इंतजामात को अपने हक में दुरुस्त किया। फिर दोनों अपने लश्कर के साथ अलमरकब से निकल ले और तराबलस का रुख किए। उस शहर पर सलीबियों ने 150 साल पहले कब्जा किया था। इसके इर्द गिर्द कई इलाकों को जम करके उसको एक सलीबी रियासत की शक्ल दी गई थी। सुल्तान सैफुद्दीन के ज़माने तक ये शहर सलीबियों के एक अहम मरकज़ की हैसियत इख्तियार कर गया था और मफ्तूहा इलाकों से सलीबी इसी इलाके में आकर आबाद हो गए थे। सुल्तान सैफुद्दीन और तुर्निताई ने तराबलस पहुंचते ही शहर का मुहासरा कर लिया। ये शहर भी अपने इस्तेहकामात और मजबूती के लिहाज से अपनी मिसाल ही रखता था। यहाँ भी सुल्तान सैफुद्दीन और तुर्निताई ने मुहासरे को तूल देते हुए सलीबियों को शहर से बाहर निकालकर जंग करने पर मजबूर किया, लेकिन यह शहर चूंकि काफी बड़ा था, इसमें हथियारों और खुराक का ज़खायर भी लामहदूद थे, लिहाजा सलीबी बाहर निकल गए। सुल्तान ने भी मुहासरे के दौरान शहर के फसील का एक नाजुक हिस्सा निगाहों में रख लिया था और उस पर लगातार मिंजकों के जरिए संगबारी की थी। कई बार फसील का वो हिस्सा टूटा। सुल्तान ने उस रास्ते से अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन हर बार सलीबी राह रोकते हुए फसील के ऊपर इस्तिवार और मजबूत करके रख देते थे। इस तरह उस शहर के मुहासरे पर लगभग 1 माह गुजर गया। 1 माह के बाद सुल्तान ने शदीद संगबारी कराते हुए एक बार फिर फसील का वो हिस्सा मंजिकों के जरिए तोड़ डाला था और जो ही फसील का वो हिस्सा टूटा, सुल्तान और तुर्निताई ने अपने लश्कर को यूं आगे बढ़ाया ताकि फसील के टूटे हुए हिस्से से अंदर दाखिल होकर शहर पर हमलावर हो जाए। जो ही सुल्तान तुर्निताई का मुत्तहद लश्कर फसील के टूटे हुए हिस्से के पास पहुंचा, अंदर से सलीबी लश्कर करिया धोल गुलशन को उबारते हुए तूफान की तरह हमलावर हो गया था। लेकिन सुल्तान और तुर्निताई भी सलीबियों के इस हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। उन्होंने भी पहले इस हमले को रोका, उसके बाद उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई कर दी थी। दोनों लश्कर बुरी तरह एक बार फिर तराबलस शहर के फसील के करीब टकराए थे। थोड़ी देर तक खून चाटती ख्वाहिशें मौत और मर्ग की हदेत रक्स करती रही। फिर सलीबियों में पसपा होना शुरू हो गए, जबकि सुल्तान सैफुद्दीन और तुर्निताई अपने हिस्से के लश्करियों के साथ शहर में दाखिल होना शुरू हो गए। सलीबी एक तरह से शिकस्त और हजीमत उठाते हुए पीछे हटना शुरू हो गए थे, जिससे फायदा उठाते हुए सुल्तान सैफुद्दीन और अमीर तुर्निताई भी अपने सारे लश्कर को लेकर तराबलस शहर में दाखिल हुए। एक बार फिर तराबलस शहर में घुमसान का रंग पड़ा। सलीबियों ने अपनी पूरी कोशिश की कि अपनी सारी ताकत को काम में लाते हुए मुसलमानों को शहर से बाहर निकाल दे, लेकिन उन्हें कामयाबी ना हुई, क्योंकि जो कुव्वत भी
मुसलमानों पर हमलावर हुई। सुल्तान सैफुद्दीन और अमीर तुनिताई ने उसे काट कर रख दिया। अनगिनत सलीबी जंगजू और रजाकार तराबलस शहर में तहे तेग कर दिए गए थे। यूं सलीबियों को शहर के अंदर भी बदतरीन शिकस्त हुई और तराबलस शहर पर सुल्तान सैफुद्दीन और अमीर तुनिताई ने कब्जा कर लिया। आखिर 1 माह के ताबड़तोड़ हमलों के बाद सुल्तान सैफुद्दीन तुनिताई ने तराबलस शहर को फतह किया। हजारों सलीबी मौत के घाट उतार दिए गए और शहर को नजर आतिश कर दिया गया। मशहूर मोरिक अबुल फदा उस जंग में भी शरीक था। वो खुद लिखता है, तराबलस शहर में हर तरफ सलीबियों की लाशों के अंबार लगे हुए थे। उनमें से ऐसी मकरू बदबू उठ रही थी कि मेरे लिए वहां ठहरना मुश्किल हो गया था। तराबलस शहर पर कब्जा करने के बाद सुल्तान ने वहां से भी कूच किया और नसरानियों के तीसरे किले अल बितरून का रुख किया। अल बितरून में एक छोटा सा लश्कर था जो वहां हथियारों और खुराक के ज़खायर की हिफाजत के लिए छोड़ा गया था। उस लश्कर को जब खबर हुई कि अल मराकब और तराबलस को फतह करने के बाद सुल्तान सैफुद्दीन और तुनिताई अल बितरून का रुख कर रहे हैं, तो उन पर ऐसा खौफ तारी हो गया कि उन्होंने शहर से बाहर निकलकर सुल्तान का इस्तकबाल किया और अल बितरून बगैर किसी मज़ाहमत के सुल्तान के हवाले कर दिया। इस तरह सुल्तान और तुनिताई ने फिलिस्तीन में एक तरह से नसरानियों की कुव्वत को कुचल कर रख दिया था। फिलिस्तीन में अब मुसलमानों के मुकाबले में सलीबियों का सबसे बड़ा मरकज अक्का और चंद दिगर इलाके थे जो सुल्तान सैफुद्दीन के बाद उनके जानशीनों ने फतह कर लिए। जिस रोज अक्का शहर मुसलमानों के हाथों फतह हुआ तो नसरानियों पर एक तरह का खौफ और लर्जरा तारी हो गया। अक्का फतह होने पर सूरे शहर की सलीबियों ने आप शहर खाली कर दिया और सीधा के सलीबियों ने भी उनकी पैरवी की और सीधा शहर भी उन्होंने मुसलमानों के हवाले कर दिया। इस वाक़े के 7 दिन बाद बीरूत, 20 दिन के बाद इंदरूस और 1 माह के बाद दूसरे सलीबियों ने भी मुसलमानों के सामने हथियार डाल दिए। यूं रुकनुद्दीन के छोड़े हुए काम की तकमील हो गई और यूरोप के सलीबियों ने जो जद्दोजहद महनूना जोश और खोश के साथ शुरू की थी वो 193 साल के बाद खाक में मिला दी गई। बकौल मशहूर मौर्रिख फिलिप के हत्ता मसीहत और इस्लाम के दरमियान कशमकश के शानदार ड्रामे का आखिरी पर्दा गिरा गया और सलीबियों को हमेशा के लिए अर्ज़ फिलिस्तीन से निकाल दिया गया। यही उमादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, रुकनुद्दीन और सैफुद्दीन के ख्वाबों की ताबीर थी। अल बितरून को फतह करने के बाद सुल्तान सैफुद्दीन तुनिताई ने चंद रोज तक वहां क़याम करके हालात दुरुस्त किए। फिर वहां से कूच किया और लगातार सफर करते हुए काहिरा की तरफ जाने के लिए उन्होंने सूसा नाम की बस्ती के नवाह में अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया। उसी रोज जिस वक्त अमीर तुनिताई और रुदा दोनों मियाँ बीवी अपने खीमे में बैठे हुए थे, उन्होंने अपने खीमे के दरवाजे पर किसी के शोर करने और झगड़ाने की आवाज सुनाई दी। दोनों मियाँ भी अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। खीमे के दरवाजे पर आकर तुनिताई और रुदा दोनों ने देखा तुनिताई के खीमे के मुहाफिज कदगान से उलझ रहे थे। कदगान अंदर आना चाहता था, वो उसे रोक रहे थे। कदगान को देखते हुए तुनिताई ने अपने मुहाफिजों को मुस्कुराकर मुखातब करते हुए कहा, मेरे अजीजों, इसे मत उलझाओ, ये मेरा भाई है, इसे अंदर आने दो। अमीर के इस हुक्म पर वो मुहाफिज एकदम पीछे हटकर खड़े हो गए। कदगान भागकर आगे बढ़ा। पहले वो अमीर से बगलगीर हुआ, मिला, फिर उसने रोदा से सलाम कहा। अमीर तुनिताई का हाथ पकड़कर अपने खीमे में लाया, फिर पूछने लगा, कहो कदगान, खैरियत तो है? तुम्हारा चेहरा पीला है और तुम्हारे चेहरे पर फिक्र के आसार भी हैं, खैरियत तो है? कदगान बोल पड़ा, अमीर, क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम बिरनीस है? कदगान के इन अल्फाज पर अमीर तुनिताई नहीं, रुदा भी चौकन्नी पड़ी थी। तुनिताई ने पूछा, तुम बिरनीस को कैसे जानते हो? क्या हुआ उसको? कदगान फिर बोल पड़ा, अमीर, बिरनीस इस वक्त जख्मी हालत में हमारे घर में पड़ी हुई है। यूं जाने उसके जख्म लाइलाज है। इस वक्त वो मौत की दहलीज पर खड़ी है। मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ। उसकी ख्वाहिश है कि मरने से पहले वो एक बार आपको देख ले। अमीर, बिरनीस ने मुझे और अर्जुन दोनों को अपने हालात तफसील के साथ बताए थे। हैरत की बात यह कि बिरनीस अर्जुन की बहन निकली है। तुनिताई फौरन बोल पड़ा, मैं उस भेद को पहले से जानता था। तुम कहो, क्या कहने वाले हो? कदगान ने फिर कहना शुरू किया। अमीर, बिरनीस का कहना है कि जिस वक्त इस पर इंकिशाफ हुआ कि सुल्तान रुकनुद्दीन का सालार अव्वल तुनिताई लंगड़े राहिब की भेष में उनके मरकजी शहर में दाखिल हुआ, उसके भाई के अलावा पादरियों और बिशप को भी कत्ल किया, तो वक्ती तौर पर बिरनीस के दिल में आपके खिलाफ नफरत पैदा हुई थी और उसने मुस्लिम जवानों का एक दस्ता तरतीब दिया था। इसके साथ वो आपका खात्मा करना चाहती थी, पर बिरनीस को मालूम ना था कि वो अपने दिल की गहराइयों से आपको चाहती है और आपसे मोहब्बत करती है। लिहाजा जिस वक्त वो आपसे इंतकाम लेने के लिए निकली तो बर्दाश्त ना कर सकी और अपने आप से इंतकाम लेने के बजाय आपकी हिफाजत पर उतर आई। उसी दौरान कुछ फिदाई भी उसके दस्ते में शामिल हुए ताकि आपसे इंतकाम लिया जा सके। आपको याद होगा, जिस वक्त आप सूसा से निकले थे तो सियाह घोड़ों पर सवार बातिने आपके ताकुब में थे, जिन्होंने कोहिस्तानी सिलसिले पर आप पर हमला कर दिया था। जबकि मैं, अर्जुन और अमीज खजरून भी आपके पीछे पीछे आए थे, तो आप पर हमलावर होने वाले बातिनों पर
किसी ने तीर अंदाजी की थी और फिर आपने देखा एक लड़की चट्टानों की ओर से भागी थी। वो बिरनीस थी और आपका खात्मा करने के बजाय अपने ही दस्ते के लोगों से आपकी हिफाजत करती रही। जब वो आप पर हमलावर होते तो छुप कर उन पर तीर बरसाते और उनका खात्मा करती चली जाती। आपको ये भी याद होगा कि आपके लश्कर के पड़ाव में एक बार आपके खीमे के बाहर 2 लाशें पड़ी थी। वो भी बिरनीस के साथी थे जो आपका खात्मा करना चाहते थे, लेकिन पुष्ट की जानिब से तीर बरसा कर बिरनीस ने उनका खात्मा कर दिया था। जब कभी भी उनके साथी या फिदाई आप पर हमलावर होते तो पुष्ट की जानिब से उन पर हमला करती और आहिस्ता आहिस्ता उसने काफी हद तक उनका खात्मा कर दिया। लेकिन बाद में बचने वाले 3 को इल्म हो गया कि बिरनीस असल में तुर्नितै से इंतकाम नहीं लेना चाहती बल्कि हिफाजत करती है और हमारे साथियों का भी उसने खात्मा किया है। लिहाजा उन्होंने बिरनीस पर हमला कर दिया। उन्होंने बिरनीस को बुरी तरह जख्मी किया है। बिरनीस बचकर सूसा में दाखिल हो गई। आपकी तलाश में सरगर्दा रहती हुए उसे मेरे और अर्जुन और अमीज बिन खजून के मुतालिक भी इल्म हो गया था। लिहाजा जख्मी हालत में अर्जुन के पास आई और उस पर यह भेद जाहिर किया कि उसकी बहन है। अर्जुन बेचारी ने उसको बड़ी तीमारदारी की और गुज़िश्ता 1 माह से हमारे घर में पड़ी हुई है। हम बड़ी तंग उदूद से उसका इलाज करते रहे। मेरा और अर्जुन का यह ख्याल था कि जब बिरनीस सेहतयाब हो जाएगी तो हम उसे आपके सामने पेश करेंगे और वो आपसे माफ़ी मांगेगी और आप उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन अमीर, वो सेहतयाब नहीं हुई। वो चंद घड़ियों की मेहमान है, आपकी मुंतजिर है। क्या आप मेरे साथ सूसा चलेंगे? बिरनीस आपकी मुंतजिर है। तुर्नितै फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा और कहने लगा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रोदा भी उठ खड़ी हुई। फिर दोनों मियाँ भी खीमे से बाहर आए। मुहाफिजों को उन्होंने घोड़े लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मुहाफिज 2 घोड़े ले आए। दोनों मियाँ भी सवार हुए। इतनी देर तक कदगान भी अपने घोड़े पर सवार हो गया। फिर वो घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए सूसा की तरफ जा रहे थे जो वहां से सिर्फ 1 मील के फासले पर था। घोड़े से उतरकर तुर्नितै और रुदा दोनों भागते हुए अमीज बिन खजून की हवेली में दाखिल हुए। उन्होंने देखा हवेली के एक कमरे में बिस्तर पर बिरनीस बुरी हालत में पड़ी हुई थी। उसके करीब ही अमीज बिन खजून और अर्जुन बैठे हुए थे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे और उसके गाल बताते थे कि वो काफी देर वहां बैठकर रोती रही। जो ही तुर्नितै और रुदा वहां पहुंचे, अर्जुन ने अपनी आंखें खुश की। फिर बिस्तर पर लेटी हुई बिरनीस के कान में सरगोशी की। बिरनीस, मेरी बहन, सामने देखो कौन आया। बिरनीस ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलकर अपने सामने खड़े तुर्नितै और रुदा की तरफ देखा। फिर हाथ के इशारे से बैठने को कहा। तुर्नितै और रुदा दोनों करीब ही नशिस्तों पर बैठ गए। तुर्नितै ने गौर से बिरनीस की तरफ देखा और जायजा लिया। बिरनीस के होठों की गुलाबी गर्मी खत्म हो चुकी थी और उसके उजड़े शहर जैसे लब खामोश थे। फिर वो अमीर से मुखातिब हुई। अमीर, मैं आपसे इंतकाम लेते लेते अपनी जात से इंतकाम ले बैठी। मैंने इस मोहब्बत की गहराई का अंदाजा ना लगाया था जो मैंने आपसे की थी। वक्ती तौर पर जब मुझ पर यह इंकिशाफ हुआ कि आप मुसलमान ही नहीं मेरे भाई के कातिल भी हैं तो मेरे दिल में एक नफरत उठी थी, लेकिन वो नफरत आर्जी साबित हुई। आपकी मोहब्बत उस पर ऐसी गालिब आई और मैं खुद आपके हालत में बह गई। यहाँ तक कहने के बाद बिरनीस लम्हे भर के लिए खामोश रही। उसके बाद फिर बोली, अमीर, मैं बहते पानी की सूखी रेत हूँ। मैं रात की पहली बर्फानी मौसम की बारिश हूँ। बुरा हो उन हालात का जिन लोगों से मैं डरती थी। आखिर उन्होंने मुझ पर हमला किया और मेरी मौत के दर पे हुए। मेरे अमीर, मैं बेबस और मजबूर कर दी गई थी। यहाँ तक कहते कहते बिरनीस खामोश हो गई। उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। तुर्नितै और रुदा दोनों ने देखा उसकी आंखों में हजारों सवाल, होठों पर फीका तबस्सुम, चेहरे पर उदासी लिखी थी। उसके लहजे में लर्जरात था, ठहराव आवाज में गूंजती जुदाई थी। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बिरनीस फिर बोली, अमीर, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी घाट पर पहुंच चुकी हूँ। मेरी जियत अब अबरगेजा हो चुकी है। आह सोख्ता तन्हाइयां मेरे ताकों में है। तारीखों की चादर मौत का हिसार मेरे दर पे है। अब मैं खुद को ओढ़ कर सोने वाली हूँ। मेरी खुशकिस्मती कि मैं अपनी बहन अर्जुन के पास 1 माह पहले इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। यहाँ तक कहते कहते बिरनीस खामोश हो गई और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई थी। अमीर ने उसका हाथ पकड़कर नब्ज का जायजा लिया। वो मर चुकी थी। तुर्नितै की गर्दन झुक गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। रुदा और अर्जुन दोनों धाड़े मार मार कर रोने लगे थे। पास ही खड़े अमीज बिन खजूर और कदगान की आंखों से भी आंसू बहकर उनके दामन को भिगो रहे थे। शाम के करीब बिरनीस को सूसा के कब्रिस्तान में बिल्कुल कोहिस्तानी सिलसिले से मुल्हिक दफन कर दिया गया। अमीर, तुर्नितै, रुदा, अमीज बिन खजूर, कदगान और अर्जुन काफी देर तक कब्रिस्तान पर बैठे रहे। अर्जुन और रुदा दोनों कोहिस्तानी सिलसिले में फूल चुन चुन कर बिरनीस की कब्र पर डालती रही। यहाँ तक कि जब सूरज गुरूब होने के लिए झुक गया तब वो अपने घोड़ों पर सवार हुए। कदगान, अर्जुन, अमीज बिन खजूर अपनी बस्ती की तरफ जा रहे थे, जबकि अमीर, तुर्नितै और रुदा अपने घोड़ों को उस रास्ते पर भगा रहे थे जो उनके लश्कर के पड़ाव की तरफ जाता था। सूरज बड़ी तेजी से तपते पिंजर धरती पर शब के गम के अक्स छोड़ता गुरूब हो गया था। उजाला एहसास की डूबती नब्जों की तरह सुकूत और अंधेरा वहम व गुमान के फैले साहिलों की तरह छाने लगा था।
زیت کے کھلے صفحات اور راستوں کے نشیب اور فراز لایانیت کے دکھ میں ڈوبنے لگے تھے، اسی رات سلطان سیف الدین اور امیر تنتیک لشکر سوسا سے قاہرہ کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ ختم شد۔